Hello, friends. I am Shalabh Jain. Once again, I am among all of you with a new chapter named The Rat Trap. This is fourth chapter of your book Flamingo. In this chapter, the writer Selma Otilia Lovisa Lagerlof. It is her complete name, Selma Otilia Lovisa Lagerlof. She has highlighted what is important in a human character. Actually, through this story, Selma Otilia Lovisa Lagerlof has highlighted a belief. What is the belief? What is the background? That essential goodness in a human being can be awakened through understanding and love. In a nutshell, what is the theme of the story? With the power of love, with the power of understanding, we can change, we can transform even a dreaded criminal or a person who has bad character. It means love and understanding are two powerful forces which can transform overall personality of a person. In this story, the main character is Rat Trap Peddler. आपने सुना ही होगा rat trap. Generally, people keep rat trap at their home to trap the rat. चूहेदानी in simple language. But over here, the chapter the rat trap is a metaphorical reference. What is metaphorical? The whole world has been compared to rat trap. So rat trap means the world and rats we human beings. There are uncountable temptations around us. They keep luring us, they keep tempting us, and when we trap towards those temptations, जब हम उन temptations की तरफ जाते हैं, हम trap हो जाते हैं, we cannot find the way out. It means we are like rat and the whole world is like rat trap and the temptations are bait. Temptations are bait. Bait आपको मालूम होगा, जब कभी भी किसी रैट को ट्रैप करना होता है तो हम रैट ट्रैप में कुछ पीस ऑफ चीज़, पीस ऑफ ब्रेड, समथिंग वी हैंग ओवर देयर, कुछ ना कुछ वहाँ लगाया जाता है. दैट इज बेट. इन द सेम मैनर इन दिस वर्ल्ड द fraudsters, the cheaters, the criminals use so many baits to tempt us. If you are wise enough, अगर आप समझदार हैं, you will smell the danger and you will not let yourself trap over there. लेकिन अगर आप pros and cons study नहीं कर रहे हैं तो definitely you will trap. So this is the long and short of the chapter the rat trap. Through the vagabond rat trap seller, Selma Lagerlof has highlighted the philosophy of the world. There was a man and he kept moving place to place. That's why the man has been called vagabond, loafer, rat trap seller और peddler. As you know, मैं आपको वही पॉइंट्स बता रहा हूँ विच आर डायरेक्टली रेलेवेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और अगर आप इनको भी पढ़ लेंगे तो एग्जाम में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे. rather than going word to word and line to line, by these points you will come to know what are the main and essential elements of this chapter. So the rat trap peddler, who was a vagabond, peddler or vagabond both are same, the person who keep moving place to place without any purpose. So he used to do three things to keep his body and soul together. क्या क्या काम करता था? He used to do begging, he used to sell the rat traps, but the business was not profitable, and sometimes he did not hesitate to make petty thievery, छोटी मोटी चोरियां भी कर लेता था. अब सोचिए, एक पर्सन तीन काम कर रहा है, बैगिंग कर रहा है,
रेड ट्रैप, जो रेड ट्रैप्स है वो बेच रहा है, सेल कर रहा है और चोरी भी कर रहा है. इवन देन हिज कंडीशन वॉज नॉट सो गुड. दैट्स वाई ही केप्ट प्लॉडिंग. प्लॉडिंग मीन्स मूविंग here and there purposelessly. So he kept plodding on the road. इस उम्मीद से कि शायद कहीं से कोई असिस्टेंस मिल जाए, और ऐसा लगता था जैसे कि वो मेडिटेशन कर रहा हो. He always lost in some thoughts. But such type of people are not respected. Such type of people are not taken care of. That's why he kept moving place to place without any purpose, without any friend, without any identity, without any known to anyone. एक बार क्या हुआ, when he was moving along the road, आपके लिए एक नया वर्ड आएगा, ट्रजिंग. TRUDGING, ट्रजिंग. One day when he was trudging along the road, he was struck by a philosophical idea. This is very very important point. What philosophical idea did rat trap peddler have one day? क्या philosophical idea आया? The name which is metaphorical reference of the chapter. The whole world with its lands and seas, cities and villages was nothing but a big rat trap. The whole world he compared with a rat trap. It had never existed for any other purpose than to set bait for the people. और ये जो दुनिया है ये किसी और पर्पस के लिए नहीं बनी. यहाँ सिर्फ बेट्स हैं. बेट्स का मतलब ट्रैप्स. जैसे रैट को ट्रैप करने के लिए हम बेट लगाते हैं, इन द सेम मैनर किसने सोचा ये रैट ट्रैप पेडलर ने सोचा. कब सोचा? वन डे व्हेन ही वाज प्लॉडिंग और ट्रजिंग अलोंग द रोड. तो उसके मन में क्या आया कि पूरी दुनिया एक रैट ट्रैप है, चाहे उसमें सिटीज़ हों, विलेजेस हों, सीज जो भी है, यहाँ पर सब ये रैट ट्रैप्स हैं. और यहाँ पर हमारे लिए क्या है? हमारे लिए बेट्स हैं जो हमें ट्रैप करने के लिए हमेशा तैयार हैं. और अब ये रेड ट्रैप्स ने बेट्स किसको कहा? रिचेस, जॉयज, शेल्टर, फूड, हीट, क्लोथिंग, मतलब देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स. कभी लोग फूड के लिए ट्रैप हो जाते हैं, कभी लोग मनी के लिए ट्रैप हो जाते हैं. आपने सुना होगा हनी ट्रैप. Sometimes on the social networking sites, some boys and girls are trapped by the opposite sex. That is what? That is also a kind of trap. And later on they have to feel sorry when they trap over there. तो ये जो thoughts थे, रेड ट्रैप पेडलर को इन थॉट्स ने बड़ा एंटरटेन किया, उसको बड़ा मजा आया. एंड आफ्टर दैट ही स्टार्टेड लुकिंग द वर्ल्ड विद द न्यू पर्सपेक्टिव. इस पर्सपेक्टिव से कि पूरी दुनिया एक रेड ट्रैप है, दुनिया के लोग जो हैं वो रेड्स हैं, और दुनिया की जो ये ऑफरिंग्स हैं ये सब बेट्स हैं, और हम लोग कहीं ना कहीं टेम्प्ट हो रहे हैं इनको टच करने के लिए. तो ये सोच, ये आइडिया, ये थॉट उसको बड़ा एंटरटेन करने लगी. अब वो रोड पर जब भी जाता, ही केप्ट गेजिंग द पीपल कि कौन लोग कहाँ ट्रैप हो रहे हैं. अब यू नो वेरी वेल, वर्ल्ड कैन नॉट बी फ्रेंडली or kind with such kind of people, because these people have no character, these people have no identity, these people cannot be trusted upon. That's why nobody trusted on this man, and whenever he wanted to spend night at any of the houses where he passed through, people shunned him away. लोग उसको इग्नोर कर देते थे, गालियां देते थे, कॉल्ड हिम बाय अगली नेम्स. इससे उसके मन में जो लोगों के लिए नेगेटिविटी थी वो और इंक्रीज हो गई. तो हुआ क्या, वन डे, वन इवनिंग, ही वॉज ट्रजिंग. अभी आपको मैंने बताया था वर्ड ट्रजिंग. तो ही वॉज ट्रजिंग अलोंग द रोड. ही फाउंड अ लिटिल ग्रे कॉटेज बाय द रोड साइड. बिकॉज दिस इज स्टोरी ऑफ स्वीडन. स्वीडन में रोड के साइड जो छोटे छोटे घर बने होते हैं वो घर होते हैं क्रॉफ्टर्स के. अब ये क्रॉफ्टर्स कौन है? जो लोग डेली वेज अर्नर्स होते हैं, जो फॉर्ज में, फैक्ट्रीज में काम करते हैं, दे आर कॉल्ड क्रॉफ्टर. तो ऐसा ही एक घर था किसी क्रॉफ्टर का, एंड ही वॉज लिविंग इन दैट ग्रे कॉटेज. हालांकि रेड ट्रैप पेडलर जानता है कि व्हेन आई विल नॉक द डोर
आई विल नॉट बी वेलकम्ड इन साइड, ऑन द कॉन्ट्ररी गालियाँ ही मिलेंगी, आई विल बी अब्यूज्ड। लेकिन आज उसकी डेस्टिनी कुछ और कह रही थी। बाई चांस द ऑनर ऑफ द हाउस, हम किस ऑनर की बात कर रहे हैं? क्रॉफ्टर की। क्रॉफ्टर्स कौन होते हैं? जो रोड साइड पे रहते हैं स्वीडन में, एक पुअरली कंस्ट्रक्टेड हाउसेज में। तो द मैन हु वाज ए क्रॉफ्टर, ही वाज एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ और ए चाइल्ड। You know very well, man is a social animal. Without society, we feel lonely. Rat Trap Peddler knocked the door of Crofter's house, and by chance, Crofter too was feeling alone. That's why he immediately invited him. It was a surprise. And he was very much hospitable. Crofter was very much hospitable. He offered porridge. Porridge का मतलब होता है दलिया। दलिया आपने सुना होगा, इट इज़ ए डिश। तो ही ऑफर्ड पॉरिज टू हिज गेस्ट। किसने ऑफर किया? क्रॉफ्टर ने। किसको? रेड ट्रैप पेडलर को। बिसाइड दैट ही कार्व्ड ऑफ ए बिग स्लाइस फ्रॉम हिज टोबैको रोल। स्मोक करने के लिए उसने अपने गेस्ट को टोबैको दिया। एंड साइड बाय साइड दे प्लेड गेम ऑफ मिजोलिश। मिजोलिश इज ए काइंड ऑफ कार्ड गेम, you can see over here. It means Crofter was very hospitable man. He entertained his guest with warm welcome. He gave him porridge to eat. He gave him tobacco roll to smoke. He played the card Majolish with him, and he was very much generous with his confidences. क्या मतलब है इस लाइन का? Just as with as much generosity he had given him porridge and tobacco, with the same generosity he explained the story of his life. उसने अपनी लाइफ की स्टोरी भी शेयर की। क्या बताया उसने? दैट ही यूज टू वर्क इन आयरन मिल। जैसे आपको मालूम है, जब दो लोग बैठते हैं तो कुछ ना कुछ तो बात करेंगे, स्पेशली इफ यू आर स्ट्रेंजर, सो यू हैव प्लेंटी ऑफ थॉट्स, प्लेंटी ऑफ टॉक्स टू शेयर विद ईच अदर। तो उसने बताया कि ही यूज टू वर्क इन राम्सजो आयरन मिल, बट नाउ ही वॉज एन ओल्ड मैन। प्रीवियसली ही वॉज ए डेली वेज अर्नर, बट प्रेजेंटली बिकॉज ऑफ इन्फर्मिटीज ऑफ एज, बूढ़ा हो चुका था वो, तो ही केप्ट ए काओ एंड ही सोल्ड इट्स मिल्क टू द क्रीमरी in order to earn his daily life, in order to earn his livelihood, in order to earn his daily bread. अब क्रॉफ्टर क्या करता है? ही सेल मिल्क ऑफ काओ टू द क्रीमरी, जहाँ मिल्क से क्रीम निकालते हैं। एंड इन दिस वे ही वॉज अर्निंग ए रिस्पेक्टेबल अमाउंट टू गेट हिज डेली लाइफ। एंड लास्ट मंथ ही सर मैंने कितने कमाए हैं? 30 क्रोनर। क्रोनर इज unit of Swedish currency, and when this story was written at that time, 30 kroner used to be a good amount. Today it might be different, but if you compare the rate of kroner from Indian currency, so it will be around 8 or 8.50. One Indian rupee is equal to around 8.50 kroners. So in this way he got 30 kroners. The stranger कौन है यहाँ पर? रेड ट्रैप पेडलर seemed incredulous. Incredulous का मतलब होता है जब आपको किसी बात पर विश्वास ना हो सकता है कि रेड ट्रैप पेडलर who was actually a thief also, when he heard about 30 kroners, उसके मन में क्या आ गया? लालच आ गया, टेम्पटेशन आ गई, ग्रीड आ गया। देखो यहाँ पर बेट क्या है? 30 क्रोनर्स। उसके मन में आया कि क्यों ना ये पैसे मुझे मिल जाएं, तो उसने ऐसे बिहेव किया, ऐसे जेस्चर्स दिए जैसे उसको समझ नहीं आया कि 30 क्रोनर्स आपने कमाए। एंड ओल्ड मैन, कुछ लोग ना बड़े जेनरस हो जाते हैं, दूसरों के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं, तो ही वेंट टू द विंडो। उसने लेदर का पाउच निकाला विच वाज हैंगिंग ऑन ए नेल विंडो फ्रेम के पास, और उसने उसमें से 10 क्रोनर बिल्स निकाल के दिखाया कि देखो सर, ये रे 30 क्रोनर्स मैंने कमाया लास्ट मंथ। आपने रैट को बेट दिखा दिया। रैट यहाँ पर मेटाफोरिकली कौन है? रेड ट्रैप पेडलर। बेट क्या है? 30 क्रोनर्स। और वापस पैसा वहीं रख दिया।
लेकिन क्या हुआ, ही गेव द थीफ एड्रेस ऑफ हिज मनी, उसने चोर को अपने पैसे का एड्रेस दे दिया। अब हुआ क्या, एनीवे बोथ द मैन पास द नाइट, kept talking and ultimately they went to sleep. Next morning both got up, अब क्योंकि पैडलर को भी जाना था और क्रॉफ्टर को भी जाना था इन ऑर्डर टू मिल्क हिज काउ, तो दोनों अपने अपनी जगह चले गए। एंड पैडलर said goodbye and thank you to the crofter, but now listen friends, it is very very important, but just after half an hour later पैडलर कहाँ गया, पैडलर केम जस्ट आउटसाइड द विंडो ऑफ द रेड क्रॉफ्टर्स हाउस। उसको मालूम है इस विंडो के पीछे जो नेल है, नेल का मतलब है कील उस कील के ऊपर पाउच है, उसमें 30 क्रोनर्स हैं। तो उसने क्या किया, इन ऑर्डर टू एक्वायर दोज 30 क्रोनर्स ही ब्रोक द विंडो पेन, खिड़की का शीशा उसने तोड़ा, टुक आउट द मनी फ्रॉम द पाउच, उस लेदर पाउच को वहीं हैंग किया और चला गया। यानी कि रैट ने बेट पकड़ लिया, ट्रैप हो जाएगा वो, क्योंकि जैसे ही रैट बेट पकड़ेगा वो ट्रैप होगा। नाउ ही स्टार्टेड, उसने क्या किया, पैसा जेब में रखा और ही स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स द रोड। उसके मन में ये आया कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं अभी पैसा लेके निकलूं और पीछे पीछे क्रॉफ्टर आ जाए, एंड व्हेन ही विल सी द ब्रोकन विंडो पेन ऑफ हिज हाउस ही माइट रेज अलार्म और मैं पकड़ा जाऊं। दैट्स व्हाई ही डिसाइडेड टू टेक द पाथ ऑफ फॉरेस्ट, ही डिसाइडेड टू टेक द पाथ ऑफ फॉरेस्ट rather than taking the common way or the highway. अब आप जंगल के रास्ते चलते हैं तो यू नो वेरी वेल इन द फॉरेस्ट पाथवेज आर नॉट देयर। तो शुरू में तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, अब होता भी है जब आप जर्नी शुरू करते हैं, इन द बिगिनिंग यू आर वेरी एक्साइटेड, यू डू नॉट फील एनी प्रॉब्लम, यू डू नॉट फील एनी कॉम्प्लिकेशन, उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बट एज द डे एडवांस्ड हिज कंडीशन टर्न वर्स, वो कंफ्यूज हो गया, क्योंकि फॉरेस्ट का रास्ता हमेशा कंफ्यूजिंग होता है। आप जब फॉरेस्ट के एरिया में जाते हैं, आपने देखा भी होगा देर आर सो मैनी चैनल्स, नेशनल ज्योग्राफी चैनल, डिस्कवरी चैनल, वहाँ दिखाया हुआ है कई बार डॉक्यूमेंट्रीज में कि पीपल फॉरगेट द पाथ इन द फॉरेस्ट एंड दे ट्रैप ओवर देयर। और ये होता भी है, फॉरेस्ट में अगर आप चल रहे हैं लगातार आपको लगेगा यू आर मूविंग इन ए सिंगल डायरेक्शन, बट एक्चुअली आप एक सर्कल में घूमते रहते हैं, दैट इज कॉल्ड विशियस सर्कल, नॉन एंडिंग सर्कल। यही हुआ हमारे मेन कैरेक्टर के साथ भी, ही केप्ट मूविंग इन ए सेम सर्कल फॉर आवर्स आफ्टर आवर्स, इट मीन्स ही कुड नॉट फाइंड द वे आउट, बाहर निकलने का रास्ता उसको नहीं मिला। जब सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम हो गई, नाउ ही रियलाइज्ड कि आई हैव ट्रैप्ड इन द रेड ट्रैप, और बेट क्या था, 30 क्रोनर्स ऑफ द क्रॉफ्टर। अगर वो क्रॉफ्टर के 30 क्रोनर्स ना चोरी करता, व्हाट वाज द नीड टू टेक द पाथ ऑफ फॉरेस्ट, जंगल जाने का रास्ता जरूरत नहीं थी, यहाँ नहीं आता तो ट्रैप नहीं होता, लेकिन यहाँ वो ट्रैप हो चुका है। अब देखिए क्या प्रॉब्लम आई, बिकॉज इट वॉज मंथ ऑफ लेट दिसंबर, दिसंबर जनवरी दीज आर द मंथ ऑफ पीक विंटर, और वैसे भी फॉरेस्ट एरिया में ठंड ज़्यादा होती है बिकॉज ऑफ द ग्रीनरी। एक तो उसको ठंड लगने लगी, दूसरा डार्कनेस, क्योंकि फॉरेस्ट में अंधेरा जल्दी होता है, तो ड्यू टू कैनोपीज ऑफ द ट्रीज, तो डेंजर वहाँ ज़्यादा लूम करता है, लूम का मतलब मूव करता है। अगर आप जंगल में हैं, रात का टाइम हो जाए तो एट नाइट द नॉक्टर्नल एनिमल्स, मतलब जो नाइट के एनिमल्स हैं, क्रिएचर्स हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं। तो तीन चीज़ें उसको तंग कर रही हैं। नंबर 1 हंगर, ही मे डाइड ड्यू टू स्टारवेशन। नंबर 2 एक्सट्रीम कोल्ड बिकॉज ऑफ द दिसंबर विंटर। नंबर 3 वाइल्ड एनिमल्स। वो समझ गया कि माई एंड इज़ नियर, इन तीन में से कोई भी चीज़ मुझे ख़त्म कर देगी, या तो भूख स्टारवेशन, या फिर कोल्ड एक्सट्रीम कोल्ड, या फिर वाइल्ड एनिमल। ही एक्सेप्टेड हिज डेस्टिनी एंड ही लेड ऑन द ग्राउंड। जमीन पर लेट गया कि चलो भाई अब मरना तो है ही,
बट सडनली व्हाट हैपेंड, आपको याद होगा, व्हेन रेड ट्रैप पेडलर वाज स्पेंडिंग टाइम विद द क्रॉफ्टर, क्रॉफ्टर ने क्या बताया था, ही यूज टू वर्क इन राम्स जो आयरन मिल। इट मीन्स इस जंगल के पास एक मिल है और सडनली ही हर्ड रेगुलर थम्पिंग साउंड, जैसे जमीन के ऊपर कोई चीज जोर से मार रहा हो। क्योंकि मिल थी तो मिल में जो पिग आयरन है, पिग आयरन का मतलब होता है कच्चा लोहा, उसको वहां पर कूटा जाता था, पीटा जाता था, दैट इज कॉल्ड थंप किया जाता था। तो ही हर्ड थंपिंग साउंड, वो समझ गया ये कौन सी आवाज़ है, ये हैमर की आवाज़ है, हैमर के स्ट्रोक की आवाज़ है जो कि आयरन मिल में चल रहा है। बस उसको लगा अब एक मौका मिल गया बाहर निकलने का। ही समंड, समंड मीन्स कलेक्टेड हिज स्ट्रेंथ, समंड मीन्स कलेक्टेड, स्ट्रेंथ मीन्स पावर, गॉट अप, स्टैगर्ड, स्टैगर्ड का मतलब होता है लड़खड़ाते हुए, इन स्टम्बलिंग वे, उसने उसी डायरेक्शन में चलना शुरू कर दिया जहां से आवाज आ रही थी। एंड फाइनली धीरे धीरे करता हुआ वो कहाँ पहुंच गया, ही रीच्ड आउट ऑफ द फॉरेस्ट, वो पहुंच गया जंगल से बाहर, और वह वो पहुंच गया राम्सजो आयरन मिल। इससे क्या मतलब साबित हुआ फ्रेंड्स, गॉड समटाइम्स गिव अस एन अपॉर्चुनिटी टू फील सॉरी और रिपेंटेड ऑन अवर रॉन्ग एक्टिविटीज। देखिए गलत काम चलो हो गया किसी से, नोइंगली अननोइंगली, गॉड हमें एक मौका जरूर देता है अपनी गलती को रेक्टिफाई करने का, इम्प्रूव करने का, उस सिचुएशन से बाहर निकलने का। लेकिन जो लोग गलती पे गलती करते हैं तो देर इज़ नो कम बैक फॉर देम एंड दे हैव टू, दे डिजर्व पनिशमेंट। यहाँ पर भी वही हो रहा है, गॉड ने पेडलर को एक चांस दिया उस डेथ ट्रैप से बाहर निकलने का, एंड फाइनली ही केम आउट फ्रॉम द फॉरेस्ट एरिया एंड नाउ ही वॉज इन द सेफ जोन। अब हुआ क्या, इट वॉज नाइट टाइम एंड राम्सजो आयरन मिल और इट वॉज ए फॉर्ज, सो मैनी पुअर पीपल यूज टू कम ओवर देयर इन ऑर्डर टू गेट वार्मथ, क्योंकि दिसंबर का महीना है, सर्दियाँ पीक पर हैं, तो सो मैनी पीपल केम ओवर देयर इन ऑर्डर टू गेट वार्मथ। वहाँ पर राम्सजो आयरन मिल में हमारा पैडलर भी पहुँच गया, एंड ही वॉन्टेड टू टेक परमिशन फ्रॉम द ब्लैक स्मिथ, कि सर मैं यहाँ रुक जाऊँ रात को। ब्लैक स्मिथ बिकॉज ही वॉज हैबिचुअल, वहाँ काफ़ी लोग आते थे, ही डिड नॉट एंटरटेन द पैडलर, और पैडलर ने भी ध्यान नहीं दिया, एंड ही वेंट इनसाइड द आयरन मिल इन ऑर्डर टू पास द नाइट। लेकिन हुआ क्या, जो राम्सजो आयरन मिल थी, इट वॉज ऑफ ए प्रोमिनेंट आयरन मास्टर। प्रोमिनेंट का मतलब होता है हाईली रिस्पेक्टेबल, वेरी मच नोन, जाना माना जो पर्सनैलिटी हो। तो ही हैड ग्रेट एम्बिशन टू शिप आउट गुड आयरन टू द मार्केट, इसलिए वो क्या करता था, ही केप्ट कमिंग फॉर द इंस्पेक्शन एट नाइट, नाइट में वो कभी भी इंस्पेक्शन के लिए अपनी मिल में आ जाता था। तो जैसे ही वो आयरन मास्टर अपनी मिल में आया, ही सॉ टॉल रैगमुफिन, दिस वर्ड हैज़ बीन यूज फॉर द पेडलर, वैगाबॉन्ड, रैगमुफिन, पेडलर, दीज ऑल आर सिनोनियम। उसने अपनी मिल में इसको देखा, एंड इन द लाइट ऑफ फर्नेस, फर्नेस का मतलब होता है भट्टी, जैसे तंदूर होता है, इन दिस वे। तो उसने जैसे ही इस रैगमोफिन को देखा, इस पेडलर को देखा, आपको शायद मालूम होगा इन दिस वर्ल्ड देर आर सो मैनी पीपल, दे हैव रिजेंबल्ड फेस समवेयर, हमारे फेस का जो कॉन्टूर है, आउटलाइन है, हमारे फेस के जो फीचर्स हैं, बहुत लोगों से कई बार मिलते हैं। यहाँ पर भी वही हुआ, रैट ट्रैप पेडलर का जो फेस था वो आयरन मास्टर के फ्रेंड मिस्टर नाइल ऑलॉफ से मिलता था, मिस्टर नाइल्स ऑलॉफ। अब ये कौन है, व्हेन आयरन मास्टर वॉज इन आर्मी इन द रेजिमेंट over there, he had his friend Niles Olof over there, and due to some reasons Mr. Olof left the army. In the dim light of forge,
रेड ट्रैप पेडलर वॉज लुकिंग लाइक नाइल ओलॉफ, क्योंकि कुछ एक्सप्रेशंस मिलते होंगे। आयरन मास्टर मिस्टुक हिम हिज फ्रेंड नाइल ओलॉफ। अब उसको लगा कि तो मेरे दोस्त हैं, वो उसके पास पहुंच गया। ही वॉज अंडर इल्यूजन एंड ही कॉल्ड हिम बाय द नेम मिस्टर ओलॉफ। मिस्टर ओलॉफ, आप यहाँ और इन दिस कंडीशन, ये सब क्या हो गया? अब सुनिए ध्यान से सेकंड पॉइंट। अब देखा जाए तो इफ यू आर बीइंग कॉल्ड बाय सम पर्सन बाय सम अदर नेम, तो व्हाट इज योर ड्यूटी? टू डिसइल्यूजन द पर्सन कि सर दिस इज नॉट माय नेम, आई एम वट एवर योर नेम इज देयर, यू विल मेंशन दैट नेम। उसने क्या बोला? उसको लगा कि रेड ट्रैप पेडलर को लगा कि आयरन मास्टर इज कंसीडरिंग मी हिज फ्रेंड एंड ही माइट गिव मी सम मनी, क्योंकि दोस्त समझ रहा है, पुअर कंडीशन देख रहा है मेरी, तो ही माइट गिव मी सम बक्स, कुछ पैसे मिल जाएंगे। फिर से रेड ट्रैप में जा रहा है, क्योंकि बेट क्या है? पैसा। इसे कहते हैं जब आप सुधरना नहीं चाहते। हुआ क्या? व्हेन रेड ट्रैप पेडलर वॉज मिस्टुक मिस्टर ओलॉफ बाय आयरन मास्टर एंड ही कॉल्ड हिम, सर ये सब कैसे हो गया? उसने क्या कहा? गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद मी। इसके वर्ड्स है ये, दीज आर द वर्ड्स ऑफ रेड ट्रैप पेडलर। इसका मतलब ही केप्ट आयरन मास्टर इन डार्क। उसने आयरन मास्टर को डार्क में रखा। क्या कहा उसने कि सर क्या बताऊं, सिचुएशन सब कुछ उलट पुलट हो गई और लाइफ खत्म हो गई, इसलिए मेरी हालत हो गई। इट मीन्स उसने इनडायरेक्टली कन्फेस कर लिया कि ही वॉज आई नाइल ऑल ऑफ। ये एक्सपेक्टेशन क्या थी उसकी? बक्स, पैसा, क्योंकि उसका वही लेवल था ना। बट आयरन मास्टर वॉज ए डिफरेंट काइंड ऑफ मैन। क्या कहता है? सर आपको ना रिजाइन नहीं करना चाहिए था रेजिमेंट से, यू शुड नॉट हैव रिजाइंड फ्रॉम द रेजिमेंट, दैट वाज द मिस्टेक, ये आपकी गलती थी सर, देखो क्या हालत हो गई आपकी। लो, अगर आप रेजिमेंट से रिजाइन ना करते तो ऐसा नहीं होता। अब ऐसा है सर, जो हो गया सो हो गया, अब आपको मेरे घर चलना पड़ेगा मेरे साथ। पासा उल्टा पड़ गया, सिचुएशन टर्न अपसाइड डाउन। रेड ट्रैप पेडलर वॉज एक्सपेक्टिंग मनी, लेकिन यहाँ क्या हुआ? यहाँ आयरन मास्टर कह रहा है आपको मेरे घर चलना पड़ेगा। रेड ट्रैप पेडलर को जब मालूम है, जानता है वो कि इफ़ आई वेंट टू हिज होम, वहाँ तो रोशनी कम नहीं होगी, यहाँ तो लाइट कम है, बट ओवर देयर इन द प्रॉपर लाइट आई विल बी रिकग्नाइज्ड, देन आई विल बी सेंट टू जेल, आई माइट बी पनिश्ड, आई माइट बी बीटन। और पता लगा जेब में जो 30 क्रोनर्स हैं क्रॉफ्टर के, वो भी चले गए। उसने कहा नहीं सर, मैं नहीं जाऊँगा। मना करने के पीछे रीज़न, मन में चोर है। चोर क्या है कि आई विल बी रिकग्नाइज्ड, मेरी चोरी पकड़ी जाएगी, जो जेब में पैसे हैं वो भी चले जाएंगे। ये उसका लालच है, ये उसका डर है, ये उसका फियर है। आयरन मास्टर वाज नॉट रेडी टू लीव हिज फ्रेंड इन दैट पिटिएबल कंडीशन, कि सर ये तो हो ही नहीं सकता, आपको तो मेरे साथ चलना ही पड़ेगा और आप आराम से सोइए, जब आपका मन करे चले जाना, लेकिन अब आप मेरे घर चलो। बट रेड ट्रैप पेडलर केप्ट रेफ्यूजिंग। तभी आयरन मास्टर को लगा, ही एज्यूम्ड, ही फेल्ट, कि हो सकता है कि कैप्टन साहब अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लोथिंग। देखो कितना हॉस्पिटेबल है, उसको लग रहा है कि मेरा दोस्त इसलिए मेरे घर नहीं जाना चाहता बिकॉज हिज रफ अपीयरेंस। तो क्या कहा उसने? अरे सर प्लीज़ डोंट थिंक दैट आई हैव सच ए फाइन होम। अरे सर छोटा मोटा घर है मेरा भी, मैं भी गरीब आदमी हूँ, कोई इतना बड़ा नहीं हूँ, और आप अपने कपड़ों को लेके इतना अनकंफर्टेबल फील ना करें, आप प्लीज़ घर चलें। और दूसरी बात, मेरे घर में ऐसा कोई है भी नहीं कि आपके कपड़ों को ज़्यादा देखेगा। यू नो माई वाइफ एलिजाबेथ, शी इज़ नाउ नो मोर, वाइफ तो मेरी है नहीं, और जो मेरे बॉयज़ हैं, जो मेरे सन्स हैं, जो मेरे बेटे हैं, वो अब्रॉड हैं, तो घर में कोई है ही नहीं सर सिवाय मेरी बड़ी बेटी के, एडला विलमेंसन। घर में दो ही लोग हैं, मैं और मेरी डॉटर, तो फिर क्यों टेंशन ले रहे हैं आप, घर चलो सर। लेकिन स्ट्रेंजर सेड नो, नो एंड नो। अब हुआ क्या? फाइनली आयरन मास्टर हैड टू सरेंडर। ठीक है सर, जैसे आपकी मर्जी। इट मीन्स रेड ट्रैप पेडलर
kept refusing because he knew I will be trapped over there. यहां तक आपको क्लियर हुआ फ्रेंड्स? सेकेंड पार्ट आपका नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा इसी स्टोरी का, बिकॉज द स्टोरी इज टू मच लॉन्ग, so I will continue the second part of the story in the next video. Got it friends? कोई शक? Bye bye.